Live from New Delhi, you're watching DD India Live, India's voice to the world. I'm Amritpal Singh. Coming up in the next 30 minutes, cancellation and delay of domestic flights of Indigo continue for the fifth day. Government directs all airlines to adhere to free fare caps. Indigo says it's trying to bring operations back on track. US seeks stronger ties with India over securing the Indo-Pacific. US's new national security strategy sees China as a threat, India a critical partner of the Quad. Russia bombards Ukrainian infrastructure as US says progress made in talks with Kyiv. The Ministry of Civil Aviation has imposed strict fare caps on all airlines operating on routes affected by Indigo's ongoing operational disruption, citing unusually high airfares as opportunistic pricing. An official directive mandates immediate compliance with prescribed upper limits until normalcy is restored. The move aims to shield the distressed passengers, especially senior citizens, students and patients who have financial burden due to the crisis. The ministry will monitor real-time fare data in coordination with airlines and online travel agencies, promising swift action against violations. The intervention underscores the government's commitment to pricing discipline and passenger protection in times of airline distress. Along with this, there is special passenger support and refund cell which has been made to ensure seamless grievance redressal. Indigo has been instructed to set up dedicated passenger support and refund facilitation cells. In a special move to assure baggage handling, the ministry has directed Indigo to ensure that all baggage that was separated from passengers due to cancellations or delays is traced and delivered to the passenger's residential or chosen address within the next 48 hours. And normalcy is gradually returning to the airports across India following widespread Indigo flight disruptions caused by pilot shortages and new duty time regulations. After days of chaos with over 1,000 cancellations on Friday alone, operations are stabilizing as of December 6th. Major hubs like Delhi, Mumbai have reported fewer delays, with Delhi operations steadily resuming. At the Ranchi airport, an additional Indigo counter has been made operational to expedite rescheduling and cancellations, easing passenger woes. The airline and authorities aim for further improvements soon. As per a statement issued by Indigo a short while ago, it is working determinedly to bring its operations back on track across the network. They also said that on Saturday, a number of cancellations has dropped. It has dropped below 850 flights, much lower compared to yesterday. Indigo further said it is continuing to work towards addressing all customer refunds on priority. And Air India has taken steps to ensure affordability in air travel by capping economy class airfares on their non-stop domestic flights. The decision was taken to prevent the usual demand and supply-driven fare hikes generated by automated revenue management systems. The airline issued the statement after screenshots of unusually high last-minute fares. According to Air India, it's technically not possible to cap every fare permutation involving stopovers or mixed cabins. However, the airlines are engaging with third-party platforms to ensure greater oversight and prevent inflated pricing.
The spokesperson added that both Air India and Air India Express are working to increase flight capacity in order to help travelers and their baggage reach their destinations as swiftly as possible. With mass cancellation of flights by Indigo and fares of other airlines skyrocketing, the Indian Railways has come to the rescue and added 116 extra coaches to 37 trains, mostly in Southern Railway, Northern Railway, Western Railway. The coaches included 2-tier, 3-tier and chair car AC coaches. More coaches would be added to trains heading to other destinations soon. The official said that the berths would be allotted on a first-come, first-served basis, as the reservation for these extra coaches were not acceded to the computerized reservation system yet. In total, the arrangements are expected to handle 35,000 passengers per day, ensuring connectivity for nearly 26 lakh passengers during this period. And for more on that story, my colleague Shubhendu Ghosh joins us. Shubhendu, there are reports that the situation is improving, things are improving at the airports. If you could give us a sense of what is the situation at the various airports across the country, including the Delhi airport. That's right, Amrit. We are getting some signals of some semblance of normalcy returning to airports for the passengers who have been stranded. Now it's the 5th day of the Indigo air operation crisis. The Indigo Airlines, in its official statement that has just come in, says that the situation is improving in the sense that as of today, only less than 850 flights were cancelled, which is a number which is lower than yesterday, although in itself it's a dramatically high number. Government has also stepped in to provide some ease to the customers. There were also concerns about other airlines unusually rising their ticket prices amidst the ongoing airline crisis concerning Indigo. Therein, the government, using its regulatory power, has put a strict cap on the fare prices, especially the routes where these particularly high prices were being observed. Also, to Indigo in particular, the government has mandated that by tomorrow, Sunday, 7th of December evening, all refunds must be issued of passengers who had to experience cancelled flights. Also, there are cases of where, as a passenger, you submitted your luggage at check-in, but the flight didn't take off or is indefinitely delayed, and your luggage is also stuck, and they don't have an alternative to leave the airport without their luggage. So within 48 hours, all such cases must also be resolved. So, and from Delhi airport in particular, Delhi, Ranchi, getting some updates saying that the operations for the passengers is slowly returning to normalcy. But given the scale of the crisis, Amrit, there's no expectation of any easy or quick resolution. Indigo by itself, earlier it had said it will take about a couple of months to resolve the crisis. First week of February is when things would become normal. With the government taking a strong stand on the issue, Indigo said that in the next 10 to 15 days, things are likely to improve. They will work on the operational issues that they had faced in the face of the FDTL policy that was earlier mandated. Now it sort of lies in abeyance for now. So in that sense, various steps are being taken, but the crisis for air passengers, Indigo air passengers in particular, is not over for some time. Okay. And Shubhendu, how did matters come to such a head? Give us a background of this, how the crisis evolved and how did it become so full-blown? Right. At the heart of this crisis, Amrit, lies a certain failure of Indigo to implement a government policy called Flight Duty Time Limitation, FDTL policy. In simple terms, it is aimed at ensuring that pilots in particular and crew in general do not experience fatigue beyond a particular point. So it was meant to ease their operations, and this was introduced about a couple of years back. In January of 2024, the policy was introduced. 1st of November this year, a few weeks ago, it was mandated compulsorily. The airlines had to take it up.
As of today, it lies in abeyance, but the moment this policy was implemented strictly by the government officially, Indigo, the largest airline service, domestic airline service in the country, which controls about 65% of the air traffic, air passengers in India, was not prepared for that kind of a policy implementation. It did not have the workforce, the crew, the pilots to make sure that it could carry on their operations efficiently. So what happened was that many pilots and crew were then officially mandated to go on leave as per the new policy. And flight cancellation was the result, so much so that in the past 4 or 5 days, over 1,000 flights, Indigo flights have been cancelled. And as compared to other airlines, Indigo in particular appears to have fallen short in implementing this policy. But given the kind of inconvenience that it has caused to people, the government for now has relaxed the rules, but at the same time it has remarked that these rules were meant to ensure air travel safety, the fatigue issues related to the pilots. So those concerns still are a key priority for the government and should be for the airlines as well. But for now, the priority, the focus would be on easing the kind of crisis that air passengers have to go through. There are different alternatives. Other airlines are also stepping up their service. Indian Railways also is coming up with extra coaches. But yet again, for the crisis to be resolved completely, it should take perhaps longer. Okay. We'll leave it there. Shivendu, many thanks for joining us and giving us the update. The third Quad Counter-Terrorism Working Group meeting between India, Japan, Australia and the United States was held in Delhi on the 4th and 5th of December as part of India's rotation hosting the next Quad Summit. During the meeting, the Quad member countries exchanged assessments on the terrorism threat landscape, including developments in the Indo-Pacific region. During the meeting, a tabletop exercise on counter-terrorism operations in urban environment was conducted. The TTX provided an opportunity for counter-terrorism experts to share their best practices and identify potential opportunities for joint operational preparedness to respond to complex terrorist scenarios. Quad partners reaffirmed their commitment to strengthening cooperation in multilateral fora. They also emphasized the value of continued information sharing on terrorists, terrorist organizations and their proxies. Quad partners committed to further deepening counterterrorism cooperation within the Quad framework and to convene the next meeting of Quad Counterterrorism Working Group in 2026. The Minister of Communications and Development of Northeast Region, Jyotiraditya Scindia, was on a 3-day visit to Nagaland. Scindia described his experience in Nagaland as amazing, noting that stone pulling ceremony, interactions with handloom and handicraft artisans and traditional blacksmiths highlighted the depth of the state's heritage. The minister attended the Hornbill Festival. The minister also shared insights from his visit to Arabica and Robusta coffee plantations, praising the quality. Highlighting the ongoing collaboration with Nagaland government, Scindia said he has been working closely with Chief Minister Neiphiu Rio on various developmental projects. He added that Rio is leading a high-level task force for the Northeast on a key initiative. All the artisans that I met, whether it was our handloom artisans, our handicraft artisans, our blacksmiths, it was an amazing experience, and therefore the potential that Nagaland has in its people, in its rich culture, in its rich heritage, is something that the world must be aware of and the world must come and experience. Vice President C.P. Radhakrishnan attended the conclusion ceremony of the 150th birth anniversary celebrations of Sardar Vallabhbhai Patel in Gujarat as the chief guest of the event. During his address, the Vice President highlighted Sardar Patel's contribution to the nation as the unifier who transformed India's diversity into unity and unity into strength. 75 years ago, Sardar Patel ji unified all the princely states, transforming diversity into unity and unity into strength.
Our nation will always be indebted to the tireless crusader, the Iron Man of India, for unifying and laying the strong foundation of Akhand Bharat. And the Vice President also spoke about the vision of Sardar Patel to transform India into a strong and self-reliant nation. Sardar Patel ji always had a dream and the vision of a strong and self-reliant India. This great vision and dream of Sardar Patel ji is fast turning into a reality over the last decade under the visionary and dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Still to come up on this edition of DD India Live, the US Supreme Court agrees to hear the case challenging birthright citizenship. 4 civilians killed in the border clashes between Pakistan and Afghanistan. Over 900 dead in Indonesia's floods as starvation threatens remote villages. So our episode is on accountability more than just an apology text. Yep. We didn't get one, did we? If no British politician has the courage to issue an apology, get somebody from the royal family to do it, because after all, everything was done in the name of the crown. No one likes to be told that in their family tree there are a lot of skeletons. They have never allowed themselves to confront the horrors of their past, so I'm sorry to say we never got the apology. There is not just amnesia on the part of the British, the colonizers, but there is some forgetfulness or ignorance on the part of the rest of us too. You're watching DD India Live. I'm Amritpal Singh. The White House released its National Security Strategy 2025, calling the Indo-Pacific the world's prime strategic arena. The document positions India as a rising security provider, saying the U.S. must deepen commercial and other ties with New Delhi. India is designated a critical partner, especially in countering what the strategy says predatory economic practices in the region. On China, the tone is sharply critical, claiming President Trump single-handedly reversed 3 decades of mistaken American assumptions about China. The document stresses the need to deter conflict over Taiwan and prevent attempts to alter the status quo by force. Europe is indirectly in the spotlight with warnings of civilizational erosion. Strategy says U.S. will reassert and enforce the Monroe Doctrine to restore American preeminence in the Western Hemisphere. Meanwhile, EU Foreign Policy Chief Kaja Kallas, speaking at the Doha Forum, downplayed concerns over the new U.S. national security strategy, stressing that the United States remains Europe's main ally. U.S. is still our biggest ally, and there I read it as well, that we are still the biggest ally, and it's in the interest of the United States as well that Europe lasts, and that we are really still the ally and working together for these things. I think we haven't always seen eye to eye on different topics, but I think the overall principle is still there. We are the biggest allies and we should stick together. In a significant move, the U.S. Supreme Court has agreed to decide the legality of President Donald Trump's directive to restrict birthright citizenship in the United States. The Supreme Court will hear the Justice Department's appeal of a lower court decision that stopped Trump's order. That order would have told U.S. agencies not to recognize citizenship for children born in the U.S. if neither parent is a U.S. citizen nor a legal permanent resident or a green card holder.
The low court ruled that Trump's policy violated the U.S. Constitution's 14th Amendment and a federal law codifying birthright citizenship rights in a class action lawsuit by parents and children whose citizenship is threatened by the directive. We can now promptly file to proceed with numerous policies that have been wrongly enjoined on a nationwide basis. And some of the cases we're talking about would be ending birthright citizenship, which now comes to the fore. That was meant for the babies of slaves. It wasn't meant for people trying to scam the system and come into the country. All right, let's go across in the national capital, where the Prime Minister has just arrived for the Hindustan Times Leadership Summit. माननीय प्रधानमंत्री जी, 23वीं हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में आपका स्वागत करते हुए मैं बेहद गर्व और प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। इस साल हमारे समिट की थीम ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो है। भारत आज जिस मुकाम पर खड़ा है वह ट्रांसफॉर्म्ड टुमारो की जीती जागती बानगी है। आज हम चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज जब दुनिया भर में प्रोटेक्शनिज्म और सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, तो तय है कि आने वाला सफ़र आसान नहीं होगा। भविष्य की चुनौतियों पर जीत के लिए कड़ी मेहनत ज़रूरी है, लेकिन यह भी इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करें। सिर्फ 2 दशक पहले लोग AI का नाम भी नहीं जानते थे। भारत तब माइक्रोचिप्स नहीं, सिर्फ आलू के चिप्स बनाता था। उन दिनों इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन और क्रेडिट कार्ड सिर्फ बड़े लोगों के पास होते थे। वह जैम ट्रिनिटी का नहीं, कैश इज़ किंग का ज़माना था। 2025 के भारत ने पूरी दुनिया को UPI जैसा फिनटेक गेम चेंजर दिया है। आज हम माइक्रोचिप्स से लेकर मिसाइल्स तक बना रहे हैं। अब भारत इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के साथ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का भी हब बन गया है। हमारी 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेज से आती है। भारत ने ये लक्ष्य 2030 की डेडलाइन से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। यह क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों मोर्चों पर एक बड़ी उपलब्धि है। 1999 के कारगिल युद्ध में हमारी विजय हुई, लेकिन इस अनुभव ने डिफेंस सेक्टर में कई गैप्स भी पिन पॉइंट किए। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने फिर से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है और जंग में जीत हासिल की है। यह सुकून की बात है कि आज सेना के साथ हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी पहले से ज़्यादा मजबूत है। पिछले 10 सालों में इनका प्रोडक्शन 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,51,000 करोड़ रुपए हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पार के दुश्मन पर जीत हो या माओवादी समस्या का समाधान, सरकार ने एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों को मजबूत किया है। इकोनॉमी हो या सिक्योरिटी या टेक्नोलॉजी, आज हम हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। अनेक बड़ी, खासकर अमेरिकन टेक कंपनीज सुपर पावर्स जैसी हैं। आने वाले दिनों में भारत को अपने कम्युनिकेशंस और AI रिक्वायरमेंट्स और एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना होगा। इंडिया 4G स्टैक और इंडिया AI मिशन इनिशिएटिव्स इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कारगर कदम हैं। फिनटेक से रिन्यूएबल और AI से आर्मामेंट तक ऐसे सभी सेक्टर्स में भारत आज आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी, इस बदलाव के पीछे आपके सक्षम नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है। 2025 दुनिया के लिए एक टर्ब्यूलेंट साल था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वायलेंट प्रोटेस्ट्स फ्रांस से लेकर नेपाल तक देखे जा रहे थे। कोलिशन पॉलिटिक्स की इंस्टेबिलिटी यूरोप में समस्या बन गई है, जबकि भारत अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे कठिन समय में भारत पूरी दुनिया के सामने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बेहतरीन उदाहरण
बनकर उभरा है। इस सफलता में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पॉलिसी कंटिन्यूटी, एजिलिटी और देश हित को सबसे ऊपर रखने के सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की ये सारी सफलताएं कई मामलों में यूनिक हैं। इस कहानी में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और अंत्योदय सब कुछ शामिल है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या गति शक्ति अभियान, चाहे देश में बढ़ते यूनिकॉर्न्स हो या लखपति दीदी के जरिए लार्ज स्केल विमेन एम्पावरमेंट, देश का विश्वास आज सिर्फ बड़े शहरों और बड़े लोगों से नहीं, बल्कि लाखों गांव और हजारों छोटे शहरों के जरिए भी मजबूती पा रहा है। इसकी झलक सिर्फ देश की इकोनॉमी में नहीं, बल्कि पद्मा अवार्ड्स, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और वर्ल्ड चैम्पियन इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम में भी दिखाई देती है। यही अमृतकाल में भारत की सच्ची स्पिरिट है और यही स्पिरिट 2047 में भारत को विकसित देश बनाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स ने 2025 सितंबर में अपना सेंटेनरी ईयर पूरा किया है। पिछले साल मैं जब प्रधानमंत्री जी को हमारे शताब्दी समारोह का न्योता देने के लिए मिली, तो हमने उन्हें बताया था कि इस यादगार अवसर को हम किस तरह मनाने जा रहे हैं। इसमें एग्जीबिशन, नेशनल डिबेट, कंपटीशन, एक बुक, फूड फेस्टिवल, लाइट और साउंड शो जैसी चीज़ें भी शामिल थीं। इस मौके पर उन्होंने सुझाव दिया कि हम एक फ़ोटो कंपटीशन करें और उसमें लार्जर पार्टिसिपेशन के लिए अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व करें। हमने ऐसा ही किया और हमें लगभग 10,000 एंट्रीज़ मिली। इस कंपटीशन के विनर्स को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी ग्रेशियस सहमति दी है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को इस साल के 2 बड़े माइलस्टोन्स पर बधाई भी देना चाहती हूँ। अक्टूबर 2025 में उन्होंने हेड ऑफ अ गवर्नमेंट के तौर पर अपने 25 साल पूरे किए। 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। 17 सितंबर को उन्होंने अपना 75वां जन्मदिन मनाया है। प्रधानमंत्री जी, इन दोनों उपलब्धियों के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। हम कामना करते हैं कि आप कई और सालों तक यूं ही देश की सेवा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध करती हूं कि वो मंच पर आएं और फोटो कंपटीशन के विनर्स को सम्मानित करें। May I request all the recipients to please come up? We have 3 winners in each category. In the category Monuments of India, we have Prabhakaran Subramaniam in 3rd place, Shahzeb in 2nd place, but he couldn't attend. And in 1st position is Kishore Das. For Communities of India, in 3rd place we have Ankur Tambre, 2nd place Udayan Jordar, and in 1st place we have Ranjit Oberoi. In the category Rivers of India, in 3rd place is Shudipto Deb. In 2nd position, Partha Pratim Saha. And in 1st place is Anjan Ghosh.
In the fourth category, Borders of India. In third place, we have Rahul Singhi. Second place, we have Mukesh Chandra Yadav. And coming first is Debraj Das. Thank you, Prime Minister, sir. May I now request all the winners to please pose for a group picture with the Honorable Prime Minister and Mrs. Bhartiya. May I request all the winners to kindly step down? बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी. Your giving the awards has really encouraged all these young budding photographers. अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमें संबोधित करें. आप सभी को नमस्कार. जहां हिंदुस्तान टाइम्स समिट में देश विदेश से अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं, मैं आयोजकों और जितने साथियों ने अपने विचार रखे, आप सभी का अभिनंदन करता हूं. अभी शोभना जी ने दो बातें बताई जिसको मैंने नोटिस किया. एक तो उन्होंने कहा कि मोदी जी पिछली बार आए थे तो ये सुझाव दिया था, इस देश में मीडिया हाउस को काम बताने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैंने की थी. और मेरे लिए खुशी की बात है कि शोभना जी और उनकी टीम ने बड़े चाव से इस काम को किया. और देश को जब मैं अभी प्रदर्शनी देख के आया, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसको जरूर देखिए. इन फोटोग्राफर साथियों ने पल को ऐसे पकड़ा है कि पल को अमर बना दिया है. दूसरी बात उन्होंने कही, और वो भी जरा मैं शब्दों को जैसे मैं समझ रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप आगे भी, एक तो ये कह सकती थी कि आप आगे भी देश की सेवा करते रहिए, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ये कहे आप आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहिए. तो मैं इसके लिए भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं. साथियों, इस बार समिट की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो. मैं समझता हूं जिस हिंदुस्तान अखबार का 101 साल का इतिहास है, जिस अखबार पर महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, घनश्याम दास बिड़ला जी, ऐसे अनगिनत महापुरुषों का आशीर्वाद रहा, वो अखबार जब ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो की चर्चा करता है तो देश को ये भरोसा मिलता है
कि भारत में हो रहा परिवर्तन केवल संभावनाओं की बात नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए जीवन, बदलती हुई सोच और बदलती हुई दिशा की सच्ची गाथा है। साथियों, आज हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जब 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। इन 25 सालों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, ग्लोबल पैंडेमिक देखी है, टेक्नोलॉजी से जुड़े डिसरप्शन देखे हैं। हमने बिखरती हुई दुनिया भी देखी है, वॉर्स भी देख रहे हैं। ये सारी स्थितियां किसी न किसी रूप में दुनिया को चैलेंज कर रही है। आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है, लेकिन अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में हमारा भारत एक अलग ही लीग में दिख रहा है। भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब दुनिया में स्लो डाउन की बात होती है, तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है। जब दुनिया में ट्रस्ट की क्राइसिस दिखता है, तब भारत ट्रस्ट का पिलर बन रहा है। जब दुनिया फ्रेगमेंटेशन की तरफ जा रही है, तब भारत ब्रिज बिल्डर बन रहा है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले भारत में Q2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है। साथियों, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और हमारे ये आंकड़े तब है जब ग्लोबल ग्रोथ 3% के आसपास है। G7 की इकोनॉमीज औसतन 1.5% के आसपास है, 1.5%। इन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन का मॉडल बना हुआ है। एक समय था जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट हाई इन्फ्लेशन को लेकर चिंता जताते थे। आज वही इन्फ्लेशन लो होने की बात करते हैं। साथियों, भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है,
ये एक फंडामेंटल चेंज है जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। ये फंडामेंटल चेंज रिजिलियंस का है। ये चेंज समस्याओं की समाधान की प्रवृत्ति का है। ये चेंज आशंकाओं के बादलों को हटाकर आकांक्षाओं के विस्तार का है। और इसी वजह से आज का भारत खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आने वाले कल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। साथियों, आज जब हम यहां ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो की चर्चा कर रहे हैं, हमें यह भी समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो विश्वास पैदा हुआ है उसका आधार वर्तमान में हो रहे कार्यों की, आज हो रहे कार्यों की एक मजबूत नींव है। आज के रिफॉर्म और आज की परफॉर्मेंस हमारे कल के ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के सामर्थ्य का एक बड़ा हिस्सा एक लंबे समय तक अनटैप रहा है। जब देश के इस अनटैप पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, जब वह पूरी ऊर्जा के साथ बिना किसी रुकावट के देश के विकास में भागीदार बनेंगे, तो देश का कायाकल्प होना तय है। आप सोचिए, हमारा पूर्वी भारत, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारे गांव, हमारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज, हमारे देश की नारी शक्ति, भारत की इनोवेटिव यूथ पावर, भारत की सामुद्रिक शक्ति, ब्लू इकोनॉमी, भारत का स्पेस सेक्टर, कितना कुछ है जिसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पाया। अब आज भारत इन अनटैप पोटेंशियल को टैप करने के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूर्वी भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्री पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज हमारे गांव, हमारे छोटे शहर भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे छोटे शहर स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के नए केंद्र बन रहे हैं। हमारे गांवों में किसान एफपीओ बनाकर सीधे मार्केट से जुड़े, और कुछ तो एफपीओ ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। साथियों, भारत की नारी शक्ति तो आज कमाल कर रही है। हमारी बेटियां आज हर फील्ड में छा रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है। इस समाज की सोच और सामर्थ्य दोनों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। साथियों, जब नए अवसर बनते हैं, जब रुकावटें हटती हैं, तो आसमान में उड़ने के लिए नए पंख भी लग जाते हैं। इसका एक उदाहरण भारत का स्पेस सेक्टर भी है। पहले स्पेस सेक्टर
सरकारी नियंत्रण में ही था, लेकिन हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म किया, उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। अभी 10-11 दिन पहले मैंने हैदराबाद में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। स्काई रूट भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये कंपनी हर महीने एक रॉकेट बनाने की क्षमता पर काम कर रही है। ये कंपनी फ्लाइट रेडी विक्रम-1 बना रही है। सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया और भारत का नौजवान उस पर नया भविष्य बना रहा है। और यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है। साथियों, भारत में आए एक और बदलाव की चर्चा मैं यहां करना जरूरी समझता हूं। एक समय था जब भारत में रिफॉर्म्स रिएक्शनरी होते थे, यानी बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं, टारगेट तय है। आप देखिए, देश के हर सेक्टर में कुछ न कुछ बेहतर हो रहा है। हमारी गति कांस्टेंट है, हमारी डायरेक्शन कंसिस्टेंट है और हमारा इंटेंट नेशन फर्स्ट का है। 2025 का तो ये पूरा साल ऐसे ही रिफॉर्म्स का साल रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का था और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ वो सारे देश ने देखा है। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स एक ऐसा कदम रहा जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था। साथियों, रिफॉर्म के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी 3-4 दिन पहले ही स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में बदलाव किया गया है। इससे हजारों कंपनियां अब आसान नियमों, तेज प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई है। हमने करीब 200 प्रोडक्ट कैटेगरीज को मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से बाहर भी कर दिया गया है। साथियों, आज के भारत की यह यात्रा सिर्फ विकास की नहीं है, ये सोच में बदलाव की भी यात्रा है। ये मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण, साइकोलॉजिकल रेनेसां की भी यात्रा है। आप भी जानते हैं, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता। दुर्भाग्य से लंबी गुलामी ने भारत के इसी आत्मविश्वास को हिला दिया था और इसकी वजह थी गुलामी की मानसिकता। गुलामी की ये मानसिकता विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत बड़ी रुकावट है और इसलिए आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहा है।
साथियों, अंग्रेजों को अच्छी तरह से पता था कि भारत पर लंबे समय तक राज करना है तो उन्हें भारतीयों से उनके आत्मविश्वास को छीनना होगा। भारतीयों में हीन भावना का संचार करना होगा। और उस दौर में अंग्रेजों ने यही किया भी। इसलिए भारतीय पारिवारिक संरचना को दकियानुसी बताया गया, भारतीय पोशाक को अनप्रोफेशनल करार दिया गया, भारतीय त्योहार संस्कृति को इरेशनल कहा गया, योग आयुर्वेद को अनसाइंटिफिक बता दिया गया, भारतीय आविष्कारों का उपहास उड़ाया गया। और ये बातें कई कई दशकों तक लगातार दोहराई गई। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता गया, वही पढ़ा वही पढ़ाया गया। और ऐसे ही भारतीयों का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। साथियों, गुलामी की इस मानसिकता का कितना व्यापक असर हुआ है, मैं उसका कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है। कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है, कोई ग्लोबल पावर हाउस कहता है। एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही हैं। लेकिन साथियों, आज भारत की जो तेज ग्रोथ हो रही है, क्या कहीं पर आपने पढ़ा, क्या कहीं पर आपने सुना, इसको कोई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकोनॉमी, तेज ग्रोथ कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत 2-3% की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को अनप्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि भारत की धीमी विकास दर का कारण हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। और हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नजर नहीं आई। ये टर्म उनके दौर में किताबों का, रिसर्च पेपर्स का हिस्सा बना दिया गया। साथियों, गुलामी की मानसिकता ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को कैसे तबाह कर दिया और हम इसको कैसे रिवाइव कर रहे हैं, मैं इसके भी कुछ उदाहरण दूंगा। भारत गुलामी के कालखंड में भी
अस्त्र शस्त्र का एक बड़ा निर्माता था। हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का एक सशक्त नेटवर्क था। भारत से हथियार निर्यात होते थे। विश्व युद्धों में भी भारत में बने हथियारों का बोलबाला था। लेकिन आजादी के बाद हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया। गुलामी की मानसिकता ऐसी हावी हुई कि सरकार में बैठे लोग भारत में बने हथियारों को कमजोर आंकने लगे और इस मानसिकता ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रूप में से एक बना दिया। साथियों, गुलामी की मानसिकता ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ भी यही किया। भारत सदियों तक शिप बिल्डिंग का एक बड़ा सेंटर था। यहां तक कि 5-6 दशक पहले तक, यानी 50-60 पहले, भारत का 40% ट्रेड भारतीय जहाजों पर होता था। लेकिन गुलामी की मानसिकता ने विदेशी जहाजों को प्राथमिकता देनी शुरू की। नतीजा सबके सामने है। जो देश कभी समुद्री ताकत था, वो अपने 95% व्यापार के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भर हो गया है। और इस वजह से आज भारत हर साल करीब $75 बिलियन, यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए विदेशी शिपिंग कंपनियों को दे रहा है। साथियों, शिप बिल्डिंग हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, आज हर सेक्टर में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर नए गौरव को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, गुलामी की मानसिकता ने एक बहुत बड़ा नुकसान भारत में गवर्नेंस के अप्रोच को भी किया। लंबे समय तक सरकारी सिस्टम का अपने नागरिकों पर अविश्वास रहा। आपको याद होगा, पहले अपने ही डॉक्यूमेंट्स को किसी सरकारी अधिकारी से अटैच कराना पड़ता था। जब तक वो थप्पा नहीं मारता है, सब झूठ माना जाता था। आपका परिश्रम किया हुआ सर्टिफिकेट, हमने ये अविश्वास का भाव तोड़ा और सेल्फ अटेस्टेंट को ही पर्याप्त माना। मेरे देश का नागरिक कहता है, ये मैं कह रहा हूं, मैं उस पर भरोसा करता हूं। साथियों, हमारे देश में ऐसे ऐसे प्रावधान चल रहे थे जहां जरा जरा भी गलतियों को भी गंभीर अपराध माना जाता था। हम जन विश्वास कानून लेकर आए और ऐसे सैकड़ों प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया है। साथियों, पहले बैंक से 1000 रुपये का भी लोन लेना होता था तो बैंक गारंटी मांगता था, क्योंकि अविश्वास बहुत अधिक था। हमने मुद्रा योजना से अविश्वास के इस कुचक्र को तोड़ा। इसके तहत अभी तक 37 लाख करोड़, 37 लाख करोड़ रुपए की गारंटी फ्री लोन हम दे चुके हैं देशवासियों को। इस पैसे से
उन परिवारों के नौजवानों को भी एंटरप्रेन्योर बनने का विश्वास मिला है। आज रेहड़ी पटरी वालों को भी, ठेले वालों को भी बिना गारंटी बैंक से पैसा दिया जा रहा है। साथियों, हमारे देश में हमेशा से ये माना गया कि सरकार को अगर कुछ दे दिया तो फिर वहां तो वन वे ट्रैफिक है। एक बार दिया तो दिया, फिर वापस नहीं आता है, जा गया। यही सबका अनुभव है। लेकिन जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है तो काम कैसे होता है। अगर कल अच्छी करनी है ना तो मन आज अच्छा करना पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो कल भी अच्छा होता है। और इसलिए हमने एक और अभियान लिया है। आपको सुनकर के ताजुब होगा, और अभी अखबारों में उसकी, अखबारों वालों की नजर नहीं गई है उस पर। मुझे पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, आज के बाद हो सकता है चली जाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में हमारे ही देश के नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपया, 78,000 करोड़ रुपये अनक्लेम पड़ा है बैंकों में। पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब 14,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। 9,000 करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है। और ये सब अनक्लेम पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है। और इसलिए जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देश भर में। अरे वे बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे माँ बाप का तो नहीं था, कोई छोड़ के तो नहीं चला गया। हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी हुई है। और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है। लोगों को समझा रहा है कि भाई देखिए, कोई है, कोई अता पता आपके पैसे कहीं है क्या, गए हैं क्या। अब तक करीब 500 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को हम दे चुके हैं जी। पैसे पड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन मोदी है, ढूंढ रहा है, अरे यार तेरा है, ले जा। साथियों, ये सिर्फ एसेट की वापसी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। ये जनता के विश्वास को निरंतर हासिल करने की प्रतिबद्धता है। और जनता का विश्वास, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर गुलामी की मानसिकता होती तो सरकारी मानस ही हावी होता और ऐसे अभियान कभी नहीं चलते। साथियों, हमें अपने देश को पूरी तरह से हर क्षेत्र में गुलामी की मानसिकता से पूर्ण रूप से मुक्त करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देश से एक अपील की है। मैं आने वाले 10 साल का एक टाइम फ्रेम लेकर देशवासियों को मेरे साथ, मेरे बातों को लिए कुछ करने के लिए प्यार से आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं।
140 करोड़ देशवासियों की मदद के बिना ये मैं कर नहीं पाऊंगा, और इसलिए मैं देशवासियों के बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं। और 10 साल के इस टाइम फ्रेम में मैं क्या मांग रहा हूं? मैकाले की जिस नीति ने भारत में मानसिक गुलामी के बीज बोए थे, उसको 2035 में 200 साल पूरे हो रहे हैं, 200 ईयर हो रहे हैं, यानी 10 साल बाकी है। और इसलिए इन्हीं 10 वर्षों में हम सभी को मिल करके अपने देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहना चाहिए। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, हम लीक पकड़कर चलने वाले लोग नहीं हैं। बेहतर कल के लिए हमें अपनी लकीर बड़ी करनी ही होगी। हमें देश की भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए वर्तमान में उसके हल तलाशने होंगे। आजकल आप देखते हैं कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार चर्चा करता हूं। शोभना जी ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। अगर ऐसे अभियान 4-5 दशक पहले शुरू हो गए होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन तब जो सरकारें थी उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। आपको वो सेमीकंडक्टर वाला किस्सा भी पता ही है। करीब 50-60 साल पहले, 5-6 दशक पहले एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहां उसको तवज्जो नहीं दी गई और देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इतना पिछड़ गया। साथियों, यही हाल एनर्जी सेक्टर का भी है। आज भारत हर साल करीब करीब 125 लाख करोड़ रुपए का, 125 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल डीजल गैस का इंपोर्ट करता है। 125 लाख करोड़ रुपया। हमारे देश में सूर्य भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी 2014 तक भारत में सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी सिर्फ 3 गीगावाट थी, 3 गीगावाट थी। 2014 तक की मैं बात कर रहा हूं, जब तक कि आपने मुझे यहां लाकर के बिठाया नहीं। 3 गीगावाट। पिछले 10 वर्षों में अब ये बढ़कर 130 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें भी भारत ने 22 गीगावाट कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ रूफटॉप सोलर से ही जोड़ी है। 22 गीगावाट एनर्जी रूफटॉप सोलर से। साथियों, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने एनर्जी सिक्योरिटी के इस अभियान में देश के लोगों को सीधी भागीदारी करने का मौका दे दिया है। मैं काशी का सांसद हूं, प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको बताना चाहता हूं, और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है तो उनको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26,000 से ज्यादा घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं।
इससे हर रोज डेली 3 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है और लोगों के करीब 5 करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं, यानी साल भर के 60 करोड़ रुपए। साथियों, इतनी सोलर पावर बनने से हर साल करीब 90,000 मैट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए हमें 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते हैं। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकड़े दिए ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं, मैं देश की बात नहीं बता रहा आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना भविष्य को ट्रांसफॉर्म करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका एग्जाम्पल है। वैसे साथियों, अभी आपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के भी आंकड़े देखे होंगे। 2014 से पहले तक हम अपने जरूरत के 75% मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, 75%। और अब भारत का मोबाइल फोन से इंपोर्ट लगभग जीरो हो गया है। अब हम बहुत बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन रहे हैं। 2014 के बाद हमने एक रिफॉर्म किया, देश ने परफॉर्म किया और उसके ट्रांसफॉर्मेटिव नतीजे आज दुनिया देख रही है। साथियों, ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो की ये यात्रा ऐसी ही अनेक योजनाओं, अनेक नीतियों, अनेक निर्णयों, जन आकांक्षा और जन भागीदारी की यात्रा है। ये निरंतरता की यात्रा है। ये सिर्फ एक समिट की चर्चा तक सीमित नहीं है। भारत के लिए तो ये राष्ट्रीय संकल्प है। इस संकल्प में सबका साथ जरूरी है, सबका प्रयास जरूरी है। सामूहिक प्रयास हमें परिवर्तन की ऊंचाई को छूने के लिए अवसर देंगे ही देंगे। साथियों, एक बार फिर मैं शोभना जी का, हिंदुस्तान टाइम्स का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया आपके बीच आने का, और जो बातें कभी कभी बताई उसको आपने किया। और मैं तो मानता हूँ शायद देश के फोटोग्राफरों के लिए एक नई ताकत बनेगा ये। इसी प्रकार से अनेक नए कार्यक्रम भी आप आगे के लिए सोच सकते हैं। मेरी मदद लगे तो जरूर मुझे बताना। आइडिया देने का मैं कोई रॉयल्टी नहीं लेता हूँ। मुफ्त का कारोबार है और मारवाड़ी परिवार है तो मौका छोड़ेगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for addressing the 23rd Hindustan Times Leadership Summit. I request everyone to kindly remain in your places until the Prime Minister has left the venue. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us for the Prime Minister Narendra Modi addressing the HT Leadership Summit in New Delhi. The theme of the summit, Transforming Tomorrow. So the Prime Minister took off from there, that how India is transforming, gave various examples of how his government is working at various levels to transform India, be it in sectors of defense, be it in sectors of manufacturing, be it in sectors of climate change or energy.
So the Prime Minister essentially saying that the transformation of the country to become a developed country by 2047 can only come through if people of this country get together and resolve to come out of a colonial mindset. He said over the next 10 years, if they can kill the colonial mindset and become a self-reliant, self-independent in their mindset, the country will become self-reliant and self-independent. That's it in this newscast. Thanks for watching. Namaskar.